Hello dear children, my name is Deepak Juneja and you are welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today we are going to begin the first lesson of the book Vistas. The name of the lesson is the third level and this is composed by Jack Finney. This lesson is based on the theme of fantasy and assumption, and it also carries the theme of time travel. You must have watched the movies like Love Story 2050 and Action Replay, and another movie is Time Machine. If you watch all these movies, these stories, these movies are basically based on the theme of time travel. Time travel, if you know that in today's time, if we take it, it may look very impossible to us. But maybe in coming time, after 50 or 100 years, it may look a reality, it may become a part and parcel of the life. So here also the story, the title of the story is the third level. Level here means the third story. Story S-T-O-R-E-Y, which is called in Hindi Manzil also. Just for example, a house also has various stories, first story, ground story, first story and second story, like that. So here also the third story or third level is being talked of. But here we are talking about the third level of Grand New York Central Railway Station. Here the author of this story, Jack Finney, experiences many things, and the third level of the railway station does not exist, but he claims that he not only has seen the third level, but also he has gone there also. He has seen many things there. While in reality, this is not possible because everybody knows that the Grand Central Railway Station has only 2 levels. So the story is based on fantasy. Fantasy, there is a slight difference between fantasy and dream. Fantasy is dreaming about something very impossible. That is called fantasy. So here also the writer will be having many difficult experiences, many hard to believe experiences. So let's go to the text, which experiences, and let's see which experiences does he talk about. Let's go to the text. So here it is your story, the third level, which is composed by Jack Finney. आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी फैंटेसी अजम्पशन पर आधारित है और इसका जो मेन थीम है वो है टाइम ट्रेवल. टाइम ट्रेवल के थीम को ये साथ लेकर चल रही है. तो इस स्टोरी को अगर आपको समझना है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसमें कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें भी हो सकती हैं. तो आप ये मान के चलिए कि ये एक साइंस फिक्शन है जो पूरी तरह से अजम्पशन के बेस पर है और फैंटेसी के बेस पर है. जहाँ कहीं भी आपको रियलिटी भी लगे तो भी आपको यही मानना है कि वो फैंटेसी और अजम्पशन के अलावा कुछ भी नहीं है. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर इज़ क्लेमिंग दैट ही हैज़ gone to the third level of the Grand Central Railway Stations, but nobody believes on his thing. कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है because everybody knows, क्योंकि सबको ये पता है कि the Grand Central Railway Station है, Grand New York Central Railway Station has only 2 levels. Grand New York Central Railway Station के केवल 2 ही लेवल्स हैं, 2 ही मंजिलें हैं उसकी, 2 ही तल हैं उसके, तीसरा तल नहीं है. That's why he goes to one of his friends who is अ साइकाइट्रिस्ट आल्सो, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट भी है यानी मनोवैज्ञानिक भी है. ही टेल्स हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम, वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है. तो हाउ डज द साइकाइट्रिस्ट रिएक्ट, साइकाइट्रिस्ट कैसे रिएक्ट करता है. ही सेज दैट टुडेज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी. दैट्स वाई यू हैव फाउंड द वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द रियल थिंग्स. तो ये सब चीज़ क्या होती है. साइकाइट्रिस्ट यानी वो बताता है कि मनोवैज्ञानिक उसको बताता है कि आज का जो समाज है, आज की जो दुनिया है, वो इनसिक्योरिटी, फियर और वॉर से फिल्ड है. इसलिए उसने ये संसार से बचने का एक रास्ता निकाल लिया है, उस दुनिया से दूर जाने का एक रास्ता निकाल लिया है और इमेजिन करना शुरू कर दिया है कि थर्ड लेवल नाम की भी कोई चीज़ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एग्जिस्ट करती है. तो अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई डिड जैक फिनी गो टू हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड एंड हाउ डिड हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड रिएक्ट फॉर दैट. उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं. ही गेव द एग्जाम्पल आल्सो, हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड गेव द एग्जाम्पल दैट हिज स्टाम्प कलेक्टिंग, इट्स हिज हॉबी, इट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. ही हैज़ डेवलप्ड दैट हॉबी बिकॉज ही वांट्स टू डिपार्ट फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वो रियलिटी से दूर जाना चाहता है, थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों को भूल जाना चाहता है. अब देखिए ये क्या चीज़ होती है. ये चीज़ होती है कि कुछ देर के लिए अभी की दुनिया को भुला देने के लिए लोग तरह तरह के तरीके यूज़ करते हैं.
आप जैसा कि जानते हैं कुछ लोग वाइन भी लेते हैं, कुछ लोग ओपियम भी लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है मॉडर्न वर्ल्ड से या जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उससे थोड़ी देर के लिए अलग होने का तरीका, डिपार्ट होने का तरीका। तो द सेम वे द साइकाट्रिस्ट इज सेइंग दैट इट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़, कि उसने अपनी रियलिटी से दूर भागने का ये तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें वो थर्ड लेवल के बारे में इमेजिन कर रहा है। लेकिन उसने फिर उसका काउंटर अटैक कैसे किया, उसने उसका काउंटर क्वेश्चन कैसे किया कि हिज ग्रैंडफादर आल्सो हैड द सेम हॉबी, कि उसके ग्रैंडफादर की भी सेम हॉबी थी स्टाम्प कलेक्टिंग, लेकिन उसके जीवन में तो कोई भी दुख नहीं था, उसकी ज़िंदगी तो बहुत प्रिटी नाइस और पीसफुल थी, बहुत अच्छी थी। ही डिड नॉट वांट एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो तो किसी प्रकार की रियलिटी से रिफ्यूज़ नहीं चाहता था। बट हियर द आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूड बट नो कंक्लूजन केम आउट, लेकिन कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। अगला जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में द राइटर इज़ गोइंग टू टेल अस दैट हाउ ही रीच्ड टू द थर्ड लेवल ऑफ Grand Central Railway Station. He says that one night last summer when he was working late at the office, he was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. क्योंकि उसे जल्दी ट्रेन पकड़नी थी इसलिए उसने सबवे लिया। सबवे मीन्स अंडरग्राउंड वे होता है, क्योंकि वो बस से फास्टर होता है, और उसे जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पे पहुंचना था क्योंकि उसे अपने अपार्टमेंट में बहुत जल्दी पहुंचना था। वहाँ उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही थी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, फिर वो अपना एक इंट्रोडक्शन देता है कि हिज नेम इज़ चार्ली एंड ही इज़ 31 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज वेयरिंग ए टैन गैरबलिन सूट, जो आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। ये सब उसका ड्रेसअप था उस दिन। ही पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और उस दिन जब वो गुजरा तो उसके पास में बहुत सारे लोग उस जैसे ही दिखाई दे रहे थे। नथिंग अनयूजुअल वॉज देयर एंड ही जस्ट वांटेड टू गेट होम टू मीट हिज वाइफ एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज लुइजा। He wanted to meet her only, that's why he was in a hurry. But something happened there. What did he say about his experience further on? कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ गया, फिर उसने स्टेप्स सीढ़ियों के सारे फर्स्ट लेवल पर गया जहाँ से आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन्स मिलती हैं। फिर वो सेकंड लेवल पे गया जहाँ पर आपको सबअर्बन ट्रेन्स मिलती हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से उसे एक रास्ता मिला, ही गॉट ए वे, और वो उस रास्ते में घुस गया एंड ही गॉट लॉस्ट, और वहाँ पर वो खो गया पूरी तरीके से। कहाँ गया उसे पता नहीं है। एंड वो कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वो कई बार बाहर निकला, लेकिन ऐसा कोई डोरवेज या स्टेयर, ऐसा किसी कॉरिडोर को नहीं जानता जिसमें से वो इस तरह से गया हो। ही गॉट इनटू ए टनल, और वो एक सुरंग में घुसा, लगभग 1 मील लंबी सुरंग थी, और फिर रूजवेल्ट होटल की इस लॉबी में आ गया। फिर ऐसे 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे वहाँ पहुँच गया। तो इस तरह के एक्सपीरियंस, ही वांट्स टू से दैट ही हैज़ एक्सपीरियंस दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स प्रीवियसली आल्सो। उसका कहने का मतलब है कि उसने ये इस तरह के एक्सपीरियंस पहले भी किए हुए हैं, आज कोई नया नहीं है। और आज भी वो सबवे वे के अंदर एक नया रास्ता उसे मिला एंड ही गॉट लॉस्ट। एंड व्हाट डज ही थिंक? ही थिंक्स दैट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। उसको लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो एक पेड़ की तरह आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें से नए नए कॉरिडोर निकलते जा रहे हैं, स्टेयर केसेस निकलते जा रहे हैं। ऐसा उसका मानना है, इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। दैट इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। वो ये भी दावा कर रहा है कि इसके नीचे, रेलवे स्टेशन के नीचे एक लंबी सुरंग जाती है जो सिटी की तरफ जाती है, टाइम स्क्वायर में निकलती है, सेंट्रल पार्क में निकलती है। So many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into. तो ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसकी imagination है, fantasies हैं, and he is saying that he has seen many kinds of doors or many kinds of stairways out of this Grand Central railway station previously also. So today's experience means the present experience which he was talking about, कि वो एक लंबी सी टनल में गया, कॉरिडोर में गया। द कॉरिडोर विच ही एंटर, जिस कॉरिडोर में उसने एंटर किया, ये एंगलिंग लेफ्ट, वो आगे की तरफ मुड़ा, और फिर स्लांटिंग डाउनवर्ड, और फिर नीचे की तरफ जाकर रास्ता जो है नीचे की तरफ मतलब झुक गया रास्ता। स्लांट मतलब नीचे की तरफ झुक जाना। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि ये गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ही सेंस्ड समथिंग फिशी इन दैट वे, येट ही कंटिन्यूड ऑन द वे। फिर भी वो चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. This shows that he was alone on that way.
उसे केवल अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसका मतलब वो अकेला था। आई डिड नॉट पास हिज सॉल, और मुझे कोई भी नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। चलते 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 उसे कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आई। इट मीन्स टू से ही हैड रियलाइज दैट ही हैड कम टू ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। नाउ हाउ डिड ही कम टू नो दैट ही हैड रीच्ड टू द थर्ड लेवल? हाउ डिड ही रियलाइज? तो रियलाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो अजीब सा होना चाहिए था। सो व्हाट हैपेंड, द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो टनल कुछ लेफ़्ट की तरफ घूमी, फिर वो शॉर्ट इसने फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, और फिर वो थर्ड लेवल पर आ गया ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के। अगेन इट इज़ हिज फैंटेसी। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि वो सेकेंड लेवल पर आ गया, लेकिन उसने क्या क्या डिफरेंसेस पाई। अब यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आता है, दो क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें यहाँ पे कि हाउ डिड चार्ली रियलाइज दैट ही वॉज एट द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पे कैसे था, उसको कैसे रियलाइज़ हुआ? उसने कुछ अजीब से तरह की चीज़ें देखी। क्या क्या चीज़ें देखी? देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, कि वहाँ टिकट विंडोज़ थी बहुत कम थी। ट्रेन गेट्स भी जो है बहुत कम थे। इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, जो बीचों बीच में जो इन्फॉर्मेशन बूथ लगे हुए थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे, पुराने ज़माने के थे। एंड द मैन इन द बूथ फॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो आदमी था बूथ के अंदर उसने ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। प्रोटेक्टर्स होते हैं वन पीस सूट होते हैं, वो पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, लाइट्स जो थी वो डिम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकर कर रही थी। तो ये सब ऑल दीज थिंग्स वर मेकिंग हिम रियलाइज दैट ही हैड रीच्ड इन एनी व्हाट टू से प्रीवियस ईयर, एनी प्रीवियस टाइम, एनी ओल्ड टाइम। इसीलिए उसको लगा कि वो शायद थर्ड लेवल पर आ गया। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि लाइट्स इसलिए डिम है क्योंकि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, वो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पर, गैस लाइटें जल रही थी। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, स्पीटून्स कहते हैं थूकने के लिए जो पॉट्स बने हुए होते हैं, फ्लोर के ऊपर ब्रास स्पीटून्स थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन पर एक लाइट पड़ रही थी। अ मैन वाज पुलिंग ए गोल्डन वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पैकेट। ऑफ लाइट कहाँ से आ रही थी? एक आदमी के वेस्ट पॉकेट में गोल्ड वॉच थी, उसमें से जो रिफ्लेक्शन निकल के आ रहा था वो उसकी आंखों में पड़ रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। ही वॉर ए डर्बी हैट, उसने उसके वॉच का कवर लिया, उसको देखा। उस आदमी ने जो है एक डर्बी हैट पहनी थी। डर्बी हैट का मतलब स्पोर्ट्स हैट पहनी हुई थी। ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था, टाइनी लेपल्स बटन्स के साथ में। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टास, उसकी बड़ी सी ब्लैक हैंडल बार मुस्टास भी थी। और तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी, जिससे उनको रियलाइज़ हुआ कि ही हैड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच चुका है। उसने देन द राइटर सेड दैट ही हैड नॉट सीन सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टासेस इन हिज लाइफ, कि उसने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स कहते हैं, इतनी कलमें और इतनी फैंसी मुस्टास यानी मूछें कभी नहीं देखी थी। अब वुमन आल्सो ही सा, जो ट्रेन गेट में से बाहर निकल के आ रही थी, उसने भी एक ड्रेस पहनी थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव का मतलब बिल्कुल स्किन टच स्लीव पहनी हुई थी। स्कर्ट्स पहने हुए थे उसने, हाई बटन शूज़ वाले, हाई बटन शूज़ पहने हुए थे, शूज़ जिन पर ऊंचाई तक बटन लगे हुए होते हैं। और उसने फिर एक लोकोमोटिव यानी एक इंजन को भी देखा। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद द फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप्ड मीन्स कुप्पी जैसा, चिमनी जैसा दिखने वाला उसने एक लोकोमोटिव भी देखा। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से उसे रियलाइज़ हुआ कि ही हैड रीच्ड एट द थर्ड लेवल। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. Now he was going to see one more thing, which was going to confirm him that he had reached to the third level. What was that? It was a newspaper. The name of the newspaper was The World, and this newspaper had not been published for years. और ये न्यूज़पेपर कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। What was the main heading of the story? It was about President Cleveland, and President Cleveland को मरे हुए तो बहुत समय हो गया था। I have found that front page in the public library files and it was printed June 11, 1894, और उसके ऊपर 11th of June 1894 की डेट लगी हुई थी। Now he was damn sure
completely confirmed that he had reached to any ancient era third level. So what did he do? He turned towards a ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, वो उसी थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की जो टिकट विंडो पर गया. वाई डिड ही गो देयर? ही वेंट देयर टू बाई टिकट्स लेने के लिए गया था. कहाँ तक की टिकट्स? वो जाना चाहता था गैल्सबर्ग, इलिनॉइस. गैल्सबर्ग इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी. गैल्सबर्ग ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ वो जाना चाह रहा था. उसने वहाँ जाकर 2 टिकट लेनी चाहिए. It's a wonder. Then the writer gives us the information about this Galesburg town. Galesburg city के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ये बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही पीसफुल. बड़े बड़े इसमें ओल्ड फ्रेम के हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े गार्डन हैं, ट्रमेंडस ट्रीज़ हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर मिलती हैं. और इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स. लोग यहीं 1894 में यहाँ बैठते हैं. मैन स्मोकिंग सिगार्स और टॉकिंग क्वाइटली. लोगों के पास में खूब समय है और लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं. वेमेन हैव वेविंग पाम लीफ फैंस. औरतें जो हैं अपने हाथ में उन्होंने वो जो पाम लीफ के बने हुए पंखे होते हैं वो हाथ में ले रखे हैं. फायर फ्लाइज चारों तरफ उड़ रही हैं. बहुत पीसफुल वर्ल्ड है. तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ही इज़ आल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ गैल्सबर्ग, और वो गैल्सबर्ग में जाना था. वो भी बहुत बड़ा शौकीन है. टू बी देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ. अभी पहला वर्ल्ड वार होने को अभी 20 साल बाकी हैं. वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर. जो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा वो फ्यूचर में कभी 40 साल बाद में होगा. मुझे 2 टिकट चाहिए थे. मीन्स टू से द गेल्सबर्ग टाउन वॉज वेरी मच his favorite because of its peaceful life. तो what happened there when he went there for ticket? अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि why did he want to go to ticket window of the Grand Central Railway Station, the third level? क्यों गया था और फिर वहाँ क्या हुआ? The clerk figured the fare. क्लर्क ने फेयर बताया. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. फेयर बताया. उसके बाद में when I counted out the money, जब उसने पैसा दिया, when he gave the money, the clerk was looking at him. The clerk was staring at him. क्लर्क ने उसकी तरफ घूर के देखा. Because he thought the currency which he was having, that was of modern time, and he had reached to the third level, and in third level the currency was of olden times. So what happened there? When he gave his new currency to him, the clerk thought that was fake currency, कि ये फेक करेंसी थी. सो ही थ्रेटन्ड हिम. इसलिए उसने इसे धमकी दी कि आई विल कॉल द पुलिस, कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा. एंड व्हेन ही रियलाइज दैट ही वाज गोइंग टू बी इन डेंजर, ही रैन अवे फ्रॉम देयर. वो वहाँ से भाग गया. एंड इन दैट वे ही केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल. और इस तरीके से वो थर्ड लेवल से भी बाहर आ गया. नाउ द राइटर डज नॉट नो हाउ ही केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल, कि वहाँ से भागने के बाद में वो कहाँ गया. दिस इज़ कम्प्लीटली फैंटेसी. दिस क्रिएट्स ए लूप होल. और यही लूप होल डाउट क्रिएट करती है कि आखिर वो उस थर्ड लेवल पे कभी गया भी था या नहीं था. लेकिन द राइटर वॉज डैम श्योर दैट ही हैड गॉन टू द थर्ड लेवल, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. उसे लगता है कि उसी रास्ते से वापस आ गया होगा. मीन्स ही इज़ नॉट श्योर. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. $300 उसने लिए और उसके बाद में ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी किसी पुरानी दुकान से किसी पुरानी स्टाइल की उसने करेंसी भी वहाँ से ख़रीद ली, लगभग $300 में. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम. लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और ज़्यादा पेमेंट पे आपको पुरानी जो करेंसी है वो आसानी से मिल जाती है. तो इस तरीके से वो उससे अपने $300 से पुरानी करेंसी लेकर आ गया. इट मीन्स टू से ही इज़ वेरी श्योर. उसे बहुत श्योर है कि ऐसा हुआ है, वो थर्ड लेवल पे गया है. एंड इट इज़ हिज प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ गोइंग टू थर्ड लेवल. और उसे पूरा विश्वास है कि वो फिर एक और नेक्स्ट राउंड लगाएगा और थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा. लुइजा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लुइजा हिज वाइफ थोड़ी सी टेंशन में आ गई जब उसे बताया गया. एंड ही डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. उसे टेंशन हो गई. उसने कहा कि इसे थर्ड लेवल वगैरह की सबकी ये कल्पनाएं वो छोड़ दें, और उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था. लेकिन कुछ समय बाद में दे बोथ वर लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. थोड़े दिनों के बाद में दोनों को विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल है. क्यों?
बिकॉज हिज फ्रेंड, द नेम ऑफ द फ्रेंड इज सैम, ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया. Nobody knew there, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galsburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that is where he is all right in 1894. तो उसका जो फ्रेंड है, his friend Sam, he also is very much fond of this Galsburg. They both have talked to each other about this Galsburg town. So he feels कि Sam has disappeared. It means to say he also must have gone there. वो भी वहाँ पर चला गया और गैल्सबर्ग में थर्ड लेवल पर. गैल्सबर्ग इज एट ओनली थर्ड लेवल. सो दे बोथ स्टार्टेड, मीन्स द राइटर चार्ली एंड हिज वाइफ लोइजा both started to believe that the third level existed. One night he was busy with his stamp hobby and he found a first day cover. What is a first day cover? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date. तो ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जिस दिन कोई नया स्टाम्प इश्यू होता है तो स्टाम्प कलेक्टर्स क्या होते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं और अपने आप को लेटर पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट मार्क जो है उसके पोस्ट ऑफिस वाले जो है उसके ऊपर अपनी सील लगाकर उस डेट को प्रूव करते हैं. उस एनवलप को ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है. दे आर नेवर ओपन्ड, वो कभी खोले नहीं जाते हैं. You just put blank paper in the envelope because in the envelopes blank paper are kept. So when he was searching his first day covers, he found one cover that should not have been there. वो कवर उसको मिला जो उसके पास में नहीं होना चाहिए था. तो what was it special? It seemed to him कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर के मेल बॉक्स में यानी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया था गैल्सबर्ग में. और अभी देखिए कैसे संभव हुआ. The writer must have traveled on time, reached to his grandfather's mailbox, ग्रैंडफादर के मेल बॉक्स में पहुंच गया और जिसने भी उसको लेटर पहुंचाया भेजा, उसको लगा कि उससे बात करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है क्योंकि वो भी ओल्ड टाइम में पहुंच गया. तो वो लेटर किसने भेजा था? सैम ने भेजा था उस लेटर को. तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि चार्ली प्रेजेंट वर्ल्ड में है और वो चला गया थर्ड लेवल पे पास्ट वर्ल्ड में. तो उससे कांटेक्ट करने का तरीका क्या होगा? उसके ग्रैंडफादर से कांटेक्ट किया जाए, उसके ग्रैंडफादर के मेल बॉक्स में वो लेटर डाला जाए और जब राइटर, ये वाला जो राइटर है, ये वापस टाइम ट्रेवल करके ग्रैंडफादर के मेल बॉक्स में पहुंचेगा तो वहाँ से इस लेटर को कलेक्ट कर सकता है. तो ऐसा ही हुआ. दिस वॉज ए लेटर फ्रॉम सैम, ये सैम की तरफ से लेटर आया था. तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू बिलीव, इस पर बिलीव करना कितना मुश्किल है. बट इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल और मे बी इन कमिंग ईयर्स 100 or 200 years इट मे बी अ रियलिटी आल्सो. तो व्हाट वाज रिटन इन द पेपर, उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट डे कवर था और पीपल ही हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट द फर्स्ट डे कवर हैज़ एन एनवलप एंड एन एनवलप हैज़ ए ब्लैंक कवर. बट हियर इट वाज नॉट ए ब्लैंक कवर, इट वाज समथिंग रिटन. तो क्या था ये चार्ली को लिखा गया सैम का लेटर था कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks and right now down the street at the Delhi's someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home and I am invited over lemonade, come on back Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level, it's worth it, believe me. The Sam is confirming that the third level exists and he is inviting Charlie and his wife there and he says that the life is very peaceful there. So actually what it is, it's an imagination about a different world to get rid of the woes of the present world. वर्तमान दुनिया के जो तनाव हैं उससे मुक्ति पाने का ये एक तरीका है किसी दूसरे वर्ल्ड के बारे में, किसी दूसरे वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करना. और ये दोनों, सैम भी उसी तरह की कल्पना कर रहा है और ये चार्ली ने भी उस तरह की कल्पना की. नोट वाज साइंड सैम एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. इसको कंफर्म करने के लिए वो कॉइन स्टोर में गया और वहाँ कॉइन स्टोर में उसको जाकर मालूम पड़ा कि उसने वहाँ पर $800 की ओल्ड करेंसी परचेस की है. दैट ऑट टू सेट हिम अप ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस.
द राइटर सेज कि इतनी बड़ी करेंसी को उसने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो इससे बड़ा सारा फीड और ग्रेन बिजनेस खोल सकता था. ही ऑलवेज सेड व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. अब तो वो अपने ओल्ड बिजनेस पर तो जा ही नहीं सकता. अब तो वो गेल्सबर्ग में चला गया है, इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस. तो ये सैम था कौन? अब राइटर ने अपना लास्ट में आकर ही हैज़ रिवील्ड द फैक्ट दैट सैम वाज नन अदर देन हिज साइकाइट्रिस्ट, कि सैम कोई और नहीं था बल्कि उसका साइकाइट्रिस्ट था. नाउ हाउ कैन ए साइकाइट्रिस्ट गो टू द थर्ड लेवल? एक साइकाइट्रिस्ट थर्ड लेवल पे कैसे जा सकता है? ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर and worries and tension. That's why people start to find the refuge, temporary refuge in another worlds. तो एक साइकाइट्रिस्ट ऐसा कैसे कर सकता है? So this is the story based on complete exemption and fantasy. Everything which is elaborated here, that is completely fictitious, nothing else, nothing true. So this was all from the explanation of this lesson. Thank you very much. If you have any doubt, please put your comments in comment box. Thank you.